Today we will see some questions which are based on some questions which are based on Markovnikov's rule and peroxide effect. See here, we'll see some questions which are based on Markovnikov's rule and peroxide effect. Correct? I'll take first question, like first one, CH3, CH, double bond CH2. This question I'm using from your textbook under the heading brain power. Okay, so we are doing this question from textbook under the heading brain power. Now they have given here CH3, CH, double bond CH2. To this, they are adding HBr. Now see here, when we have to study the Markovnikov rule or peroxide effect, you have to see which type of the alkene we have got, alkene. So we know that here this is propene and propene is unsymmetrical alkene. Propene is unsymmetrical alkene. And then we know that if your alkene is unsymmetrical and the reagent which you are adding is also unsymmetrical, then and nothing is mentioned on the arrow, then you know that H carries a plus charge, Br carries a minus charge. So see here, you are first what you have to see, we are adding HBr. We are adding HBr to propene, and propene is unsymmetrical alkene. And in this addition, unsymmetrical reagent, because we know that HBr is also called as unsymmetrical reagent. Why unsymmetrical reagent? बिकॉज इसके अगर मैं दो पार्ट करूंगा तो एक साइड में आ जाएगा H और दूसरे साइड में आ जाएगा Br, तो HBr इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. तो हमारा अल्किन भी अनसिमेट्रिकल है, हमारा रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब वी हैव टू फॉलो विच रूल, Markovnikov's rule. Markovnikov. And what is Markovnikov's rule? When unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. मतलब Br will go to CH and H will go to CH2, because we know that addition takes place across the carbon-carbon double bond, correct? Across the carbon-carbon double bond, correct? Now here I'll just write the product over here, CH3, CH, Br, CH3. ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी मेजर, ये हमें मिलना चाहिए. बट along with this ये हमारा मेन प्रोडक्ट है. बट along with this some what happens sometime, थोड़ा सा Br इधर भी चला जाएगा और Br अगर यहाँ पे चला जाएगा और H अगर यहाँ पे चला जाएगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो, Br will go to this carbon atom and H will go to the middle carbon atom. So what product we get over here? Your product is going to be CH3, CH2, CH2Br, correct? But this product, I'll just write down its name. Its name will be 1,
ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, बट दिस इज गोइंग टू बी माइन, मतलब स्मॉल अमाउंट में, मतलब व्हेन वी डू द एडिशन द मेन प्रोडक्ट इज दिस वन बिकॉज अकॉर्डिंग टू विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, और ये साइड में मिलेगा बट इट इज गोइंग टू बी इन स्मॉल अमाउंट। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में क्या बोला कि हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और कौन सा माइनर मिलेगा, तो एरो के ऊपर कुछ भी नहीं था, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा विच विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ से जो प्रोडक्ट मिलेगा विच इज गोइंग टू बी अ मेजर, और मे बी ड्यूरिंग द रिएक्शन थोड़ा बी आर यहाँ पे भी अटैच करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे रहेगा, माइनर रहेगा, करेक्ट। तो दिस इज द मेजर बिकॉज दिस प्रोडक्ट is according to the Markovnikov rule. And why Markovnikov rule? Because nothing was mentioned over the arrow and unsymmetrical reagent have added to unsymmetrical alkene. मतलब हमें दोनों मिलते हैं लेकिन ये हमारा मेजर होगा, मेजर ये लार्ज प्रोपोर्शन में होगा और ये स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा, करेक्ट। आई टेक सेकेंड एग्जांपल, that is CH3 CH double bond CH2. Of course, it is a propene. It is unsymmetrical alkene. To that, we are adding HBr, but we are doing this reaction in the presence of peroxide. We are doing this reaction in the presence of peroxide. देखो मतलब ये हमारा unsymmetrical reagent है. We are adding it into unsymmetrical alkene, but we are adding in the presence of peroxide. तो अगर यहाँ पे पेरोक्साइड रहेगा तो क्या होगा, Br will not go to CH, क्योंकि अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता, Br would have gone to CH, but because over the arrow we are having peroxide, the Br will go to CH and H will go to CH, correct. Br will go to CH2 and H will go to CH. The addition is opposite to Markovnikov, and that's why it is also called as anti-Markovnikov addition. It is also called as a anti-Markovnikov addition, and anti-Markovnikov addition is because of peroxide, so that's why it is also called as peroxide effect. It is also called as peroxide effect. So what will be a product over here? Br यहाँ पे चला जाएगा और H यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2Br. It is 1 bromo propane and it is going to be a major product. ये हमारा मेजर रहेगा, मतलब एरो के ऊपर पेरोक्साइड है इसलिए ये हमारा मेजर रहेगा, और ड्यूरिंग द रिएक्शन थोड़ा बहुत Br यहाँ पे भी चला जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि कंपल्सरी ऑल Br विल गो टू दिस कार्बन आइटम, सम लिटिल Br विल गो टू हियर आल्सो। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH Br CH3, which is called as 2 bromo propane and it is माइनर। ये हमारा माइनर, मतलब एज पर द रूल Br यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन ये हमें मिलेगा, बट साथ में ये भी थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ये हमारा रहेगा मेजर बिकॉज वी आर यूजिंग पेरोक्साइड, और ये भी मिलेगा बट स्मॉल प्रोपोर्शन में मिलेगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ माइनर। ओके, नेक्स्ट आई टेक वन मोर एग्जांपल। Okay, now they have given this compound here. I'll just write down the name of this compound. The name of this compound is 3-methyl ब्यूट 2ENE। क्यों ऐसा, देखो यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा 1, सॉरी एक मिनट, यस यस इट इज 2 आई विल कैंसिल एंड राइट हियर 2 मिथाइल ब्यूट 2N। देखो अगर मैंने यहाँ से लेफ्ट से नंबरिंग किया
तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2, 2 पे मिथाइल भी आ रहा है और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा है, दोनों का नंबर 2 आ रहा है, करेक्ट। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE, करेक्ट। और उसमें मैं HBr ऐड करूँ। तो अभी सबसे पहले हमें देखना है ये जो अल्कीन है, अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, बिकॉज अल्कीन के राइट साइड में CH3 है, अल्कीन के लेफ्ट साइड में ये ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम नहीं है। डबल बॉन्ड के बाजू वाले दोनों भी ग्रुप सेम नहीं है, मतलब ये हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल है। हमारा रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, तो रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है, अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, करेक्ट। और हम लोग सी वी आर डूइंग दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पेरोक्साइड। अभी देखो अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता तो Br would have gone to the carbon atom carrying less number of hydrogen। मतलब अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता Br would have gone to C यहाँ पे, और H would have gone to CH। लेकिन यहाँ पे एडिशन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वी आर डूइंग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन विल गेट रिवर्स, मतलब Br विल गो टू CH, करेक्ट, एंड H विल गो टू C। सो ये हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा। तो क्या लिखोगे प्रोडक्ट यहाँ पे फिर CH3 यहाँ पे H चला जाएगा, डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH और यहाँ पे Br चला जाएगा और ये CH3। ये जो हमारा प्रोडक्ट है दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर प्लस उसके साथ, लेकिन ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके थोड़ा बहुत क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर Br थोड़ा बहुत Br अगर इधर चला जाएगा, Br अगर यहाँ पे चला जाएगा और H अगर यहाँ पे चला जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो आई एम रिपीटिंग, Br विल गो टू दिस कार्बन एटम एंड H विल गो टू CH। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, देखो हमें CH3 Br CH2 CH3 ये भी मिलेगा, बट ये कैसा रहेगा, माइनर। मतलब हमारा पेरोक्साइड यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर है। तो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, करेक्ट। ओके, अगर तुम्हें अभी इसका नाम अगर लिखना रहेगा तो अगर यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा तो Br को नंबर 2 आ रहा है और मिथाइल को नंबर 3 आ रहा है। और अगर मैंने लेफ्ट साइड से नंबरिंग किया तो मिथाइल को नंबर 2 आ रहा है और Br को नंबर 3 आ रहा है। हमें हेलोजन को पहला प्रायोरिटी देना है, करेक्ट। तो नंबरिंग कहाँ से आएगा, राइट से आएगा, राइट से। योर नेम विल बिकम व्हाट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 bromo 2 methyl, and how many carbon atom in the chain, 1 2 3 4, so butane। एक्चुअली IUPAC ने स्प्लिट अप नहीं करना है, बट स्पेस नहीं है, ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर तुम्हें इसका नाम अगर लिखना रहेगा तो देखो यहाँ से नंबरिंग करूंगा क्योंकि 1 और 2 पे Br भी आ रहा है, 2 पे मिथाइल भी आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो ये हमारा मेजर है। तो ये हुआ ना, जस्ट टेक सम मोर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे आए हैं, टेक्स्ट बुक का ही है, तो मतलब थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने स्ट्रक्चर लिखा, डबल बॉन्ड दी है, ये स्ट्रक्चर है और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं HBr, ऐड कर रहे हैं HBr। तो अभी यहाँ पे कैसे होगा, डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि HBr कहाँ पे जाए, तो मैं स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ, सॉरी, कार्बन 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 हेक्सागोनल रिंग, कार्बन कार्बन एंड देन हियर हेक्सागोनल रिंग, तो हेक्सागोनल रिंग इज देयर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिखा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे HBr है, ऐड करूंगा। आई राइट हाइड्रोजन, देखो ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा,
इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है तो और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी 2 बॉन्ड है तो और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी दो, सॉरी सॉरी 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा CH2, इधर भी आएगा CH2, 2 बॉन्ड्स है तो यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे भी आएगा CH2। क्यों CH2? ये बेंजीन रिंग नहीं है, हेक्सागोनल रिंग है तो 1 2 एंड 2। यहाँ पे कितना आएगा? एक ही H आएगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड्स आते हैं और एक हाइड्रोजन 4। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4, करेक्ट। तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये कौन से कैटेगरी में जा रहा है? अनसिमेट्रिकल अल्किन की कैटेगरी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो में दिखाई दे रहा है। तो दिस कंपाउंड इज गोइंग अंडर विच हेडिंग? अनसिमेट्रिकल अल्किन। और उसमें हम लोग क्या ऐड करें? HBr ऐड करें। और HBr कौन सा रिएजेंट है? अनसिमेट्रिकल है, HBr अनसिमेट्रिकल है। तो अभी क्या होगा? एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब Br विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। बट एरो के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो एडिशन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। एंड व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल? द नेगेटिव पार्ट, ये प्लस है और ये माइनस है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो और किधर डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड के ये साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो Br विल गो टू द कार्बन आइटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Br यहाँ पे C के पास चला जाएगा, करेक्ट। And then H will go to which carbon atom? CH. So Br will go to C and H will go to CH, correct? Correct. So here तो Br यहाँ पे चला जाएगा, मतलब Br is going to the carbon atom which has what? CH3. Br is going to the carbon atom who has what? CH3. So अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा तो क्या आएगा? देखो बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे ही आएगा Br। देखो यहाँ पे लिखो बेंजीन रिंग 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है और वहाँ पे Br जा रहा है तो यहाँ पे Br भी आ रहा है और H CH के पास जाएगा तो दिस विल बिकम व्हाट? CH2 एंड ऑल रिमेनिंग ग्रुप आर एज इट इज। तो ये प्रोडक्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही है। तो Br इस कार्बन पे जा रहा है, ओके। Now one more example of this topic and then we'll go for the next. These are all example I'm taking which are given in the textbook. Ring, hexagonal ring with double bond and we are having here CH2. Hexagonal ring, benzene ring nahi hai, hexagonal ring with CH2 and to that I'm adding here HBr. तो अभी देखो, I'll write the hexagonal ring 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक भी जगह डबल बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे आएगा CH2 CH2 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर CH2। तो देखो ये कार्बन का वैलेंसी देखो 1 2 3 4, मतलब इसका वैलेंसी करेक्ट है और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है। अगर मैंने इसके अंदर अगर HBr ऐड कर दिया, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एडिशन विल ऑकर अकॉर्डिंग टू विच रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? ये H प्लस है, ये Br माइनस है, the negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen। तो हमें देखना है ये अनसिमेट्रिक ये कौन से कैटेगरी में आ रहा है। ये भी एग्जांपल हमारे अनसिमेट्रिकल अल्किन के कैटेगरी में आ रहा है। क्यों? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर साइड में CH2 है और डबल बॉन्ड के लोअर साइड में हेक्सागोनल रिंग है, तो दोनों पार्ट अलग है, इसीलिए कौन से कैटेगरी में आ रहा है? अनसिमेट्रिकल अल्किन आ रहा है।
उसमें हम लोग HBr ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर HBr ऐड कर रहे हैं, एरो के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें एडिशन कैसे फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. So what is the Markovnikov rule? When unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent, मतलब Br, negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. देखो डबल बॉन्ड के बाजू में ये एक कार्बन एटम है और ये एक कार्बन एटम है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है. करेक्ट. ओके. सो हियर Br विल गो टू C और ये जो H है वो चला जाएगा CH2 के पास. तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6. each carbon atom has already 2 hydrogen attached to it. और यहाँ पे डबल बॉन्ड will change to single bond because after addition double bond and single bond. लेकिन Br भी यहाँ पे जा रहा है, तो हाँ सॉरी H कहाँ पे CH2 के पास चला जाएगा, H will go to CH2, तो ये क्या बनेगा CH3 and Br is going to this carbon atom, तो Br यहाँ पे चला, तो ये हमारा प्रोडक्ट. करेक्ट. तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा तो हेक्सागोनल रिंग, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा Br, ये मेरा प्रोडक्ट. करेक्ट. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ. तो ये दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मार्कोनिकॉफ एंड पेरोक्साइड इफेक्ट. So we have done with this. Now I am just going for the next preparation. Yes, now we are doing, of course, what is our heading going on? Preparation of alkyl halides. Yes, A we have done from alcohol, means we have done the preparation of alkyl halide from alcohol. B we have done from hydrocarbon, that is from alkene type of the organic compound. And today we'll start with C, that is by using halogen exchange. By using halogen exchange, correct? So preparation of the alkyl halide by using halogen exchange, correct? So here I'll first alkyl iodide are prepared by treating alkyl chloride or bromides with sodium iodide in methanol or in acetone. Right here alkyl iodide are prepared, मतलब हमें यहाँ पे alkyl iodide बनाना है. Alkyl iodide are prepared by treating, either we can start with alkyl chloride or we can start with alkyl bromide with what? Sodium iodide in methanol or sodium iodide in acetone solution.
Okay, and this reaction is called Finkelstein reaction. This reaction is called Finkelstein reaction. Finkelstein is the name of the person who has invented this reaction, and therefore it is called as a Finkelstein reaction. See here, I'll take one example. Now see, we have to prepare what? Alkyl iodide. किससे बनाना है? From alkyl chloride or from alkyl bromide. So this is right general reaction कि हमारे पास स्टार्टिंग में अल्काइल क्लोराइड है या हमारे पास स्टार्टिंग में अल्काइल ब्रोमाइड है, करेक्ट? सो आइदर वी हैव द अल्काइल क्लोराइड or we are having the alkyl bromide. To that we are adding sodium iodide in acetone. Sodium iodide in acetone, करेक्ट? मतलब हमारे पास RCl means what? Alkyl chloride. RBr means what? Alkyl bromide. We are having alkyl chloride or we are having alkyl bromide. To that we are adding sodium iodide in the presence of acetone. और क्या होगा यहाँ पे? I will go and replace Cl. So we get here Ri. Ri is called as what? Alkyl iodide. So this is called as alkyl iodide plus Cl निकल जाएगा, will combine with what? Na, and what we get here? NaCl. Similarly, I will replace the Br. We get Ri. Ri is called as alkyl iodide and plus Br combines with Na. So what we get over here? NaBr. Okay, so this reaction is called as Finkelstein reaction. They are coming under which category? Halogen exchange. Halogen exchange क्यों? Because हमारे पास स्टार्टिंग में ही अल्काइल हैलाइड है, बट एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड हम लोग बना रहे हैं. मतलब हमारे पास क्लोराइड है एंड वी आर मेकिंग आयोडाइड. हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है, उससे हम लोग क्या बना रहे हैं? अल्काइल आयोडाइड. सो फ्रॉम वन हैलाइड we are preparing other halide. From one halide we are preparing the another halide, and therefore it is called as what? Halogen exchange. मतलब अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड से भी अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है. So from one halide we are preparing the other halide, and this reaction is discovered by a person, Finkelstein, and therefore it's called as the Finkelstein reaction. Now we'll take the example. One example for each we'll take. Suppose we are having C2H5Cl. C2H5Cl. C2H5Cl is called as what? Ethyl chloride. To that we can add NaI, sodium iodide. Yes, in the presence of acetone. और क्या बनेगा? I will go and replace the Cl. So what we get here? C2H5I plus NaC, which is called as ethyl iodide. So we are converting ethyl chloride to ethyl iodide. I'll take one more with bromide. Suppose we are having C2H5Br. To that we are having NaI. Again in the presence of acetone. So we are having here ethyl bromide. To that we are adding sodium iodide. I will replace the Br. So what we get here? C2H5I, ethyl iodide mila, plus we get NaBr. So this question quite often they ask in the exam, what is Finkelstein reaction? So what is Finkelstein reaction? The reaction in which one chloride or bromide are converted into iodide
by using sodium chloride in methanol or by using sodium chloride in acetone are called as a Finkelstein reaction. Okay, ये इसे हम लोग, ये जो हमारा Finkelstein reactions है, this Finkelstein reaction is also called as a name reaction. मतलब this reaction is known by the person, and because this reaction is known by the name of the person is also called as a name reaction. It's called as a name reaction. Okay. Okay. Now in this only I'll just continue one more reaction. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, क्लोराइड को आयोडाइड में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट? Okay. Now here the same, the continuation of that same reaction. Alkyl fluorides are prepared by heating alkyl chloride or bromide with metal fluorides such as, मतलब अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं अल्काइल फ्लोराइड बना रहे हैं, करेक्ट? वी आर प्रिपेयरिंग अल्काइल फ्लोराइड फ्रॉम होम, फ्रॉम अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड. So here we are preparing alkyl fluoride from alkyl chloride or bromide by using metal fluoride. Which metal fluoride? Such as AgF, मतलब silver fluoride, mercury fluoride, arsenic fluoride, antimony fluoride. मतलब ये reagent है. तो means what? Suppose if I want to convert alkyl chloride अगर मेरे पास है या अल्काइल ब्रोमाइड भी अगर मेरे पास है, तो उसमें मैं इसमें से कोई भी एक रिएजेंट ऐड करूंगा. आइदर आई विल यूज AgF or I will use Ag2F2 or I will use AsF3 or I will use SbF3 कोई भी. तो I'll just use here AgF and then F will replace the Cl. F will replace the Cl. So what do we get here? RCl. F is sorry RF, and RF is called as alkyl fluoride. RF is called as alkyl fluoride और Cl जो बाहर निकलेगा वो Ag के साथ कंबाइन होगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? AgCl. Similarly RBr allowed to react with AgF. इसमें से कोई भी एक रिएजेंट तुम लोग यूज कर सकते हो, बिकॉज अपने टेक्सचुअल में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें वहां पे उन्होंने क्या यूज किया है? SbF3 एंटीमनी. SB, I'll just write down here SbF3, ये रिएजेंट है, करेक्ट? तो चारों में से कोई भी एक चलेगा. फिर आप यहाँ पे देखो F यहाँ पे चला जाएगा एंड सो व्हाट वी गेट हियर? RF प्लस AgBr. यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने अल्काइल क्लोराइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, एंड द रिएक्शन इन विच अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड are converted into alkyl fluoride are called as Schwarz reaction. Are called as Schwarz reaction. ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या रहेगा? Schwarz reaction. हम लोग ने प्रीवियस रिएक्शन में क्या किया था? क्लोराइड और ब्रोमाइड में आयोडाइड में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लोराइड और ब्रोमाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट कर रहे हैं.
So when we convert fluoride and bromide to fluoride, then it is called as which reaction? Schwarz reaction. It is called as a Schwarz reaction. Even this is also known by this name. This is the name of the person. So this is also called as a name reaction. तो अभी तक हमने दो नेम रिएक्शन देखे. पहले वाले था फिंकिल्स्टन रिएक्शन और दूसरा हमारा था स्वार्ट्ज रिएक्शन. Correct? So what is Schwarz reaction? The reaction in which chloride or bromide are converted into fluoride are called as a Schwarz reaction. And this reaction is known by the name of the person. That's why it is called as a name reaction. Correct? Next, we'll go for the next name, preparation of alkyl halide only. ये हमारा फोर्थ प्रिपरेशन है. Preparation of alkyl halide. Sorry, 1 minute. Sorry. Yes. Now, यहाँ पे see, we are having preparation, but preparation of अराइल हैलाइड. अभी तक हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करे. यहाँ पे हम लोग क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? अराइल हैलाइड. अराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग, alternate single bond and attached to halogen. Halogen कहाँ पे भी होगा, but we are preparing अराइल हैलाइड. इस टाइप के कंपाउंड को अभी हमें देखना है. तो यहाँ पे हमारा जो प्रिपरेशन है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Electrophilic reaction क्या है? देखो, here this reaction is carried out in dark. मतलब this reaction is carried out in a dark at ordinary temperature. Ordinary temperature in presence of suitable Lewis acid catalyst like Fe, FeCl3 or anhydrous AlCl3. This reaction is carried out. मतलब ये अगर मुझे रिएक्शन परफॉर्म करना है तो आई हैव टू परफॉर्म दिस रिएक्शन इन द डार्क. मतलब कंप्लीटली डार्क एनवायरनमेंट चाहिए वहां पे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. मतलब वहां पे हीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. The substance which increases the speed of reaction are called as catalyst. And which catalyst? Either we can use Fe ion or FeCl3, or we can use anhydrous aluminum chloride. तीनों में से कोई भी एक चलेगा. What is the reaction? This reaction has to be performed in the dark at a very ordinary temperature, normal condition पे, but in the presence of catalyst like Fe, FeCl3 और anhydrous AlCl3. Correct? तो ये reaction कैसे होगा? देखो, here I'll just write the reaction. Benzene ring with alternate double bond, and here we are having CH3, and we all know that benzene ring attached to CH3 are called as a toluene. It is a toluene. Correct?
टॉल्विन, और उससे हम लोग और भी नाम है उसका होता है मिथाइल बेंजीन, ये भी उसका ही नाम है, मतलब मे बी लास्ट ईयर भी मस्ट हैव लर्न, और नहीं तो अभी यहाँ पे देखो कि इसका नाम मिथाइल बेंजीन है. We can call this compound as a toluene, a very simple common name is a toluene, मतलब पूरा. और it is also called as a methyl benzene. Methyl benzene क्यों? Because methyl group is attached to a benzene ring, so it is called as a methyl benzene. To that, we are adding here bromine. Br2 is called as a bromine, correct? And bromine we are adding, of course, we have to perform the reaction in dark, और यहाँ पे तीनों में से कोई एक लिखना है, तो जस्ट राइट डाउन सिंपल वन एज व्हाट Fe. और फिर रिएक्शन में क्या होगा, ये Br जो है, Br यहाँ पे भी जा सकता है, ये कार्बन पे अटैच कर सकता है, और Br यहाँ पे ये पोजीशन पे अटैक करता है. नाउ वी नो दैट अगर ये हमारा पोजीशन नंबर 1 है, ये नंबर हमारा 2 है, तो यहाँ पे भी अटैचमेंट होगा 3, एंड ये 4 है, 4 पे भी अटैचमेंट हो रहा है. तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, सी हियर विल गेट अ बेंजीन रिंग with alternate double bond. CH3 is already there, and the Br will go at this position, correct? Plus benzene ring, alternate double bond, CH3 and Br will go at this position. मतलब यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, मतलब दोनों में एक में से एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा, लेकिन कौन सा मेजर कौन सा माइनर हमें यहाँ पे नहीं बोलना है, खाली हमें प्रोडक्ट लिखना है. तो यहाँ पे now here this is called as a, here it is called as a, or first one is called as ortho ब्रोमो टॉल्विन, क्योंकि हमारा टॉल्विन मेन है, ये अगर नंबर 1 है और तो ये नंबर 2 रहेगा, एंड 1 2 2 पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर आ रहा है तो हमें उसे क्या बोलना है, 2, और मतलब इसका नाम दूसरा ये भी आएगा 2, सॉरी सॉरी नहीं आएगा, इसका नाम क्या आएगा, ऑर्थो ब्रोमो टॉल्विन. क्योंकि अगर ये हमारा टॉल्विन अगर हमारा मेन ग्रुप है, तो ये मेन ग्रुप के सेकंड पे बी आ रहा है, सेकंड पे अगर बी आ रहा है तो हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, ऑर्थो ब्रोमो टॉल्विन. यहाँ पे अगर ये फर्स्ट पोजीशन है बिकॉज हमारा मेन टॉल्विन है, ये इसका कॉमन नेम है, सी मतलब कॉमन नेम है. यहाँ पे अगर ये 1 है तो 2 3 4, 4 पे क्या आता है, पैरा, पैरा ब्रोमो टॉल्विन, पैरा ब्रोमो टॉल्विन. तो ये रहा हमारा ऑर्थो ब्रोमो टॉल्विन, ये रहा पैरा ब्रोमो टॉल्विन. और प्लस अभी देखो, जब बी आर, जहाँ पे Br2 था, तो एक Br यहाँ पे चला जाएगा, एक Br यहाँ पे चला जाएगा, करेक्ट, 2 Br हो गए. लेकिन जब Br यहाँ पे चला जाएगा तो मालूम है कॉर्नर पे क्या रहता है, CH रहता है, तो H बाहर निकल के आएगा. जब Br यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ से भी एक H बाहर निकल, बिकॉज वी नो दैट इन बेंजीन रिंग एवरी कॉर्नर वी आर हैविंग व्हाट, CH CH CH. जब Br यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H. Br जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H. तो how many H we are getting, 2H, and H will combine with the Br to gives you what, HBr. तो 2H बाहर आ रहे हैं तो हमें 2HBr मिलेंगे. तो अभी हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है. देखो हमारे पास कितने Br है, 1 2, और यहाँ पे 2Br है, तो 4Br है. तो हियर आई विल राइट 2, 2 2 is 4Br. हमारे पास रिंग कितने, 2 रिंग है, और हर एक रिंग में CH3 आ रहा है, तो हियर आई विल मल्टीप्लाई बाय 2. ये हमारा बैलेंसिंग हुआ. व्हाट इज द कंडीशन, व्हेन टॉल्विन रिएक्ट विद द ब्रोमीन in a dark at an ordinary temperature in the presence of Lewis catalyst like Fe, we get two products, orthobromotoluene and parabromotoluene. ये मेन प्रोडक्ट मिलेंगे और ये HBr मिलेगा. नाउ अगर आपको इसका IUPAC नेम अगर लिखना रहेगा, IUPAC नेम अगर लिखना रहेगा, तो IUPAC नेम क्या आएगा, देखो हैलोजन और मिथाइल रहेगा तो पहला प्रेफरेंस किसको, हैलोजन को चला जाएगा. अगर ये बेंजीन रिंग है, ये हैलोजन है और ये मिथाइल, तो पहला प्रेफरेंस किसको, हैलोजन को. तो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, तो योर नेम विल बी व्हाट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल
बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, ये उसका कौन सा नेम है? IUPAC। C मतलब कॉमन नेम एंड I मतलब IUPAC नेम। मतलब अगर मुझे IUPAC नेम लिखना रहेगा तो ये ब्रोमीन को पहला प्रायोरिटी जाएगा, मिथाइल को दूसरा जाएगा। तो ब्रोमो मतलब B एंड ब्रोमो कम्स बिफोर मिथाइल M, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। और यहाँ पे अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो ये नंबर आएगा 1, ये नंबर Br का नंबर 1 आएगा, मिथाइल का नंबर 4 आएगा। तो व्हाट विल राइट हियर? आई राइट 1 ब्रोमो 4 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। मतलब जस्ट आई देख रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई कॉमन नेम लिखोगे तो भी चलेगा, IUPAC लिखोगे तो भी, लेकिन दोनों नाम अगर मालूम रहेंगे तो हमेशा इज बेटर। ये हमारा प्रिपरेशन हो गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखो आज हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले हमने मार्कोनिकॉफ का देखा, और अभी हम यहाँ पे क्या कौन से प्रिपरेशन देखे? वी हैव डन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, ये हमारा फर्स्ट था अल्कोहल। उसके बाद हमने ये सेकेंड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बाद में ये हमारा थर्ड था बाय यूजिंग हैलोजन एक्सचेंज। So we have done the preparation of alkyl halide from alcohol in the very previous lectures. Hydrocarbon also done in the previous lecture, and today what we are doing, we have done preparation of alkyl halide by using halogen exchange. और halogen exchange में दो देखे हम लोगों, एक फिंकिल्स्टन रिएक्शन देखा और दूसरा फिंकिल्स्टन के बाद शॉर्ट्स रिएक्शन देखा। और ये हमारा फोर्थ प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड था, मतलब हैलोजन आइटम अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग था, by using which reaction? Electrophilic substitution reaction, correct? So I'll stop it over here. Remaining part will continue in the next lecture. Okay.